So hey my friends, welcome. So this is the video and I'll be telling you everything in this video, and this is the answer by Tina Dabi, who has achieved the first rank. You know all about her, and the question arises: if you watch this video, what we will just gain? I'll tell you what you will have, and so you will just know the idea, the concept, the strategy, or you must know the kind of concept or the words or some keywords that you can use in your answer writing while you are writing. Means I'm talking about the real exam when you will just pass the prelim and you are in the main exam, means the UPSC exam, right? You're writing your GS papers, so you must have the keywords, okay, like the concept, some words, some strategies, because it has been told by UPSC toppers themselves. They have told, means most of the toppers, you can just search on the YouTube, they have themselves told that if you want to write the answer, so we must have some like words, the specific words, some specific concept to make them understand, to make the examiner understand, to make it effective, the answer writing, like the answer. So that's how we are just using everything here. I'm just like telling you like meaning of each and every word exactly, even the term. So I've been just decoding everything, like drilling down everything for you. So if you have enjoyed like all the videos, and if you like my effort, so you just have to hit the like button and just tell me what you feel all about, what do you feel about this kind of video. I just want to know about that, okay? And okay, so if you are still here watching this video, so yeah, I appreciate your concern right now. So we will just start our video now. So this is the question. Okay, this video will be in Hindi, don't worry about that. So how are SDGs an improvement over MDGs? ओके, सो जो SDGs है, ये इसकी वैसे क्या लिखे है, अपना जो फुल फॉर्म है वो आंसर में लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट. सो जो SDGs है वो इम्प्रूवमेंट है MDGs पर. इसका भी लिखे हुआ है, क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म. ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऐसा कुछ है, तो है इसके अंदर, डोंट वरी अबाउट दैट. सो ये किस तरीके से इंप्रूवमेंट है, मतलब किस तरीके से ये अच्छा है MDGs से, एक सिंपल से लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम. और ये 200 वर्ड्स में लिखना है, बाद में यहाँ पे लिखा हुआ भी, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई डोंट नो. So what are the challenges that are foreseen in the implementation of SDGs? Okay, means Sustainable Development Goals. So challenges, चुनौतियां क्या है जो पहले से ही देखी, फोर्सिंग यानी पहले से की चीज को प्रेडिक्ट करना, पहले से देख रहे हो कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या ऐसे चैलेंजेस हम देख सकते हैं. What are the lessons that India can learn from the progress made on MDGs that could inform and enhance its performance on SDGs? सो जो लेसन है वो क्या ले सकते हैं, मतलब जो इंडिया क्या ऐसे सीख सकता है इस प्रोग्रेस से, जो किसके जरिए हुई थी, MDGs के, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, और ये क्या हमें ऐसे इन्फॉर्म कर सकता है, हमारे परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस कर सकता है SDGs, वो हमें सारी चीज़ें बताना है. तो देखते हैं किस तरीके से हैंडल किया गया ये आंसर. देखिए, SDGs का फुल फॉर्म है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अब सब में पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है हमें ये पता होना चाहिए. अब सस्टेनेबल की सब में सिंपल सी बात है, जो हम नेचुरल रिसोर्स आज हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, जैसे हमारे बच्चे आएंगे, आगे जो जनरेशन होगी वो सारी, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बची भी रहे. जैसे हम नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, ओके, नेचुरल रिसोर्स और फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, कोल, ऑयल वगैरह, तो ये चीज़ें अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अभी, तो ये फ्यूचर में बचने वाले नहीं है, क्योंकि इन्हें बहुत सारे, कई हज़ारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं इन्हें वापस बनने में. तो वो चीज़ को बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओके, मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव वो भी हमें पता लगेगा. और developmental objectives the international community has decided to follow under the aegis of United Nations at the summit celebrating 70 years of its existence. अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो उसका गोल है, आर डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव. डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट के माने क्या, विकास करना है. विकास कौन से एरिया में, जैसे पॉवर्टी को हटाना है हमारा, राइट, पॉवर्टी को हटाना है, हम ये देख सकते हैं इसमें. तो ये हमारा क्या है, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव है. द इंटरनेशनल कमिटी हैज डिसाइडेड, मतलब ये इंटरनेशनल कमिटी ने क्या डिसाइड किया है कि फॉलो अंडर द एजिस ऑफ, किसके एजिस यानी मतलब उसके सपोर्ट से, हेल्प से, किसके हेल्प से, यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से, एट दिस समिट सेलिब्रेटिंग 70 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब 70 ईयर्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो उनके हेल्प से हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है. इसके जो क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं वो सारी चीज़ें तो फॉलो करना है हमें इसे. ये सारा है, इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, राइट. सो हम आगे देखते हैं, आपको दिख रहा है सब, राइट. तो देखिए, द SDGs, ओके, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलता रहूंगा हमेशा सर, वर अडॉप्टेड टू रिप्लेस द मिलेनियम, ओके, डेवलपमेंट गोल्स, ओके, लाइक 2020 टू 2015 यहाँ पे लिखा हुआ है. अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, इसका क्या पर्पस था, SDG का क्या है पर्पस, कि वर अडॉप्टेड टू रिप्लेस द MDGs, इसके गोल्स को, मतलब
रिप्लेस करना भी, इसके भी गोल लगभग वही थे कि मतलब हमें क्या करना है, पोवर्टी को हटाना है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सभी को देना है, मतलब सब तक प्राइमरी एजुकेशन पहुंचे, राइट। वो वाली चीज़, HIV एड जो है उनको रोकना है, वो वाली चीज़ इसकी सारी थी, पोवर्टी को हटाना है, तो उसी को हमें रिप्लेस करना है। ऑल द MDGs फोकस्ड ऑन पोवर्टी एजुकेशन, ओके, poverty reduction, sorry, poverty education, how can it be, poverty reduction, infant mortality, maternal mortality, etc. अब देखिए poverty reduction क्या है, poverty को मतलब कम करना है, और infant mortality जो बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद, वो वाली, maternal जो जो क्या कहेंगे, मतलब जो जैसे प्रेगनेंसी, जैसे डिलीवरी के बाद सफियर ब्लीडिंग होती है वगैरह, राइट, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये क्या होता है, ये उसकी जान ले लेता है, ओके, मदर की जान लेता है, उसे मैटरनल मोर्टेलिटी कहेंगे, ओके, एक्सेट्रा ये होता है। सो द SDGs go a step further to solve the contemporary problems in a way that development is sustainable, equitable and inclusive. तो अब ये क्या SDGs थोड़ा आगे जाकर सोच रहा है, जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है अभी जो चल रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसके इन अ वे दैट डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल हो, इक्विटेबल हो, सबके लिए बराबर हो, और सबके साथ हो, मतलब सभी को हम इसमें इंक्लूड कर सके, ये वाली चीज SDG देख रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख रहा है, राइट। फिर उसके बाद देखिए, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए, द मेन लेसन दैट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम प्रोग्रेस मेड ऑन MDGs इज दैट वी नीड टू स्टार्ट परसीविंग, ओके, देखिए अब मेन लेसन क्या यहाँ पे इंडिया का जो सीख सकता है, कौन से प्रोग्रेस से, MDGs के प्रोग्रेस से, कि हमें क्या करना है, वी स्टार्ट परसीविंग SDGs एज सुन एज पॉसिबल, ओके, कि हमें जो उसके गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि हमें जल्दी से जल्दी क्या करना है, उसे परसीव करना, उसके पीछे भागना, उसे पॉसिबल करना, उसे क्या कहेंगे, अचीव करना बहुत जरूरी है जल्द से जल्द। वी स्टार्टेड परसीविंग द MDGs क्वाइट लेट, और इसका क्या, MDGs के क्या लुकनाई थे, मतलब क्या सेटबैक थी, क्या खामी थी, कि हमने इसे बाद में, मतलब बहुत देर के बाद से इसे लागू करने के बाद क्वाइट लेट हमने इसे परसीव करना शुरू किया, इसके पीछे भागना है, इसे अपनाना बहुत देर के बाद शुरू किया, अपनाना सही वर्ड रहेगा, एंड therefore were unable to achieve them, तो इसीलिए हम इसे अच्छे तरीके से इनके गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, right? So another lesson that can be learned is systematic formulation of policies under SDGs target। अगर दूसरा क्या है कि हम सीख सकते हैं सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन, एक सिस्टम होना चाहिए, वही अंदाज में हम फॉर्मुलेट करें, हमारे सारे पॉलिसीज को बनाए, सारे पॉलिसीज को SDGs के जो टारगेट है, एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, और बाद में ये गोल्स बनाने के बाद इसे लागू भी करना है सही ढंग से, ओके। टू थिंग्स, ओके, विच वर लैकिंग इन अचीविंग MDGs, अब जो दो थिंग थे वो कौन से थे, देखिए, citizen engagement and participation and awareness are also crucial for achieving SDGs, okay। so citizen engagement मतलब लोगों का engagement हो, कि ऐसा नहीं कि लोगों को पता ही नहीं क्या चल रहा है, उन्हें पार्टिसिपेट कराना है, अवेयरनेस कराना है, अवेयर कराना है, उन्हें जागरूक कराना है, ये सारी चीजें क्या है, क्रूशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट है अचीव करने के लिए SDGs को, एज अवर MDGs एक्सपीरियंस टेल्स अस, ओके, मतलब जो हमारा MDGs का एक्सपीरियंस है वो हमें यही बताता है कि ये क्या है, सिटीजन का एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन और जागरूकता भी सिटीजन में हम लाना चाहिए इसके बारे में। टॉप डाउन अप्रोच फेल टू गेट सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड हेंस वी कुड नॉट अचीव ऑल MDGs टू सेटिस्फैक्शन। अब देखिए पहले क्या है, टॉप डाउन अप्रोच इसमें इस्तेमाल होती है, जो फेल किया है किसी को सिटीजन पार्टिसिपेशन को एनहेंस, मतलब टॉप डाउन पहले बड़े लोग फिर छोटे 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 ऐसा कुछ हो सकता है, ओके, एंड हेंस वी कुड नॉट अचीव ऑल MDGs टू सेटिस्फैक्शन, और हम इसीलिए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो सारी तरीके से हम अचीव नहीं कर पाए। So this was the video, and okay, if you got to know, like got to learn something new in this video, what you have to do, like without thinking about your ego, just like the video and just tell me, just let me know in the comment section, like how did you enjoy this video or not. I just really want to know about this, okay, and yeah, thanks for watching this video.